Hello students, today we are going to start the grammar section's first chapter, sentences. Okay, when we discuss about any sentence, so what is the definition of sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense by itself. It means when we discuss about some group of words, then in these group of words giving the complete meaning of the in the sentence. Let me see the example. John works hard. John works hard means here we see that there are the several words arranged in a group like John works hard. So John works and hard. These are the words, and when these are arranged in this manner, which gives the complete meaning, that is called as sentence. Second example is I like to read books. So I like to or read books. These all are also the words. But when these words are arranged in that manner, which gives the complete meaning, that is the sentence. अब बच्चों, अब हम लोग आगे बात करेंगे parts of sentence. Parts of sentence means what are the different parts of sentence? There are two types of parts mainly. One is subject and another is a predicate. In the subject, we include the always noun and pronoun. When we talk about the subject, so subject is always include a noun or a pronoun or a group of words that does the work of a noun. Here, the old palace is considered haunted. All the boys are in the ground. So here in this sentence, the old palace, it is the subject because it shows the or it does the work of a noun, old place. And in this sentence, all the boys are again works as a noun in this sentence. Okay. Now we talk about the predicate. Predicate, it means which consists of one word or several words with the essential word being a verb. It means except noun or pronoun. What is used in the sentence, that is called as another part of the sentence, that is called as predicate. Like my dress is beautiful. So my dress is the subject, but here is beautiful is the predicate. ओके अब बच्चों देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो पार्ट हैं सेंटेंस के. अब हम अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा संज्ञा या सर्वनाम या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन का काम करते हैं, संज्ञा का काम करते हैं. जैसे एग्जाम्पल में जैसे ओल्ड पैलेस इज कंसिडर्ड हॉन्टेड. अब ओल्ड पैलेस क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये जो ओल्ड पैलेस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है. ऑल द बॉयज आर इन द ग्राउंड. ऑल द बॉयज क्या हो गया, ऑल द बॉयज, ये तीन वर्ड्स हैं. ये जब ग्रुप में अरेंज हुए तो इन्होंने जो है यहाँ पर नाउन का काम किया. अब बाकी जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दें तो हम जो भी सेंटेंस का पार्ट बचा होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, प्रेडिकेट. जैसे अगर इसी सेंटेंस में द ओल्ड पैलेस इज कंसीडर्ड हॉन्टेड, तो इज कंसीडर्ड हॉन्टेड ये जो पार्ट आपका बच रहा है ये क्या कहलाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा. ठीक है. और ये आर इन द ग्राउंड क्या हो जाएगा, ये भी प्रेडिकेट होगा. मैंने इसको पी से, आई एम शोइंग हियर विद द हेल्प ऑफ पी, पी एंड फॉर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ये शो किया. ठीक है. अब बच्चों इसी तरीके से कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ लेते हैं. जैसे अगर कहा जाए मीना हैज़ कम फर्स्ट इन द रेस, सो लेट वी सी व्हाट इज द नाउन हेयर, मीना. मीना यहाँ पे नाउन है, तो मीना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. एंड हैज़ कम फर्स्ट इन द रेस ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. ओके. सेकंड, जैसे लेजी बॉयज कम लास्ट. अब लेजी बॉयज कम लास्ट, ये लेजी बॉयज, तो लेजी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, लेजी बॉयज. Lazy boys is subject and comes last is predicate. So here we see that when we identify the verb and ask what or who before it, the answer would be the subject. यानी कि अगर हम कोई भी verb को लें और उसका अगर क्वेश्चन पूछें और उसका क्वेश्चन जो है हमें what और who करके पूछा जाए, उसका आंसर हमें सब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा. जैसे अगर मैंने आपको कहा लेजी बॉयज कम लास्ट, तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा हु कम्स लास्ट, या हु कम्स लास्ट का मतलब कौन
लास्ट आता है, हु कम लास्ट, तो कौन लास्ट आता है, तो हु के जवाब में मुझे आंसर क्या मिलेगा, लेजी बॉयज। तो लेजी बॉयज क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। ओके, द फुलिश क्रो ट्राइड टू बी द पीकॉक, तो हु इज ट्राइड टू बी द पीकॉक, तो यहाँ पे होगा फुलिश क्रो। ओके, यहाँ पे आई हैव मेट रमन्स फादर, ओके, हु हैव मेट रमन्स फादर, तो यहाँ पे होगा आई, अगेन सब्जेक्ट। फिर अगर आपसे कहा 1000 ऑफ ट्रीज हैव बीन कट टू कंस्ट्रक्ट द स्टेडियम, अब यहाँ पर देखिए व्हाट हैव बीन कट टू द कंस्ट्रक्ट द स्टेडियम, तो यहाँ पर व्हाट के आंसर में आपको क्या मिलेगा, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, तो हियर 1000 ऑफ ट्रीज इज अनदर सब्जेक्ट। ओके, तो बच्चों आज इस सेक्शन में तो हमने अभी डिस्कस किया कि व्हाट इज द सेंटेंस एंड व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सो सेंटेंस आपको पता ही लग गया होगा, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, एंड द मेन पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंसेस आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट. When we discuss about the object, when the verb in the predicate in a transitive verb, when any type of verb in the sentence or in the predicate is a transitive verb, so it requires an object to complete its sense. मीन्स अगर आप किसी भी सेंटेंस में के प्रेडिकेट में ये देखेंगे कि वहाँ पर एक सकर्मक क्रिया लगी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तो उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे कि उसका सेंस कंप्लीट होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन कहा, कोई सेंटेंस कहा, आई थ्रो अ बॉल, सो आई थ्रो अ बॉल, अब थ्रो तो वर्ब हुआ ना वहाँ पे, इस वर्ब के रिक्वायरमेंट में अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या चाहिए, बॉल। ठीक है, अगर हम इसका आंसर क्वेश्चन लगाएं, व्हाट, हाँ, व्हाट डू यू थ्रो, व्हाट डू यू थ्रो, आप क्या फेंकते हो, तो आप क्या फेंकोगे, बॉल। तो व्हाट के सेंस में आपको क्या उसका आंसर मिल रहा है, तो व्हाट के सेंस में जो आपको आंसर यहाँ मिलेगा वो एक्चुअली क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जब भी हम वर्ब को देखेंगे और वर्ब के आगे जो चीज़ लगी होगी वो उसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों इसके बाद, जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं मेरे पास, मैं इनमें ऑब्जेक्ट देखती हूँ। जैसे यू शुड लर्न स्विमिंग, अब यू शुड लर्न स्विमिंग है, तो यू शुड लर्न स्विमिंग का मतलब कि इसमें बच्चों व्हाट शुड यू लर्न, व्हाट शुड यू लर्न, तो यू शुड लर्न स्विमिंग, समझ में आया। तो यहाँ पे व्हाट के अर्थ में आपको क्या मिल रहा है, अगेन जो चीज़ मिल रही है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट है, जैसे इसके बाद बात करूँगी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अनदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस आप लीजिए, द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन, तो गेव तो वर्ब हुआ बच्चों इसमें, द टीचर क्या हुआ, नाउन या सब्जेक्ट, और जो स्वीट्स है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड, टू द चिल्ड्रन, दैट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हियर let we see the some examples here of direct and indirect objects. लाइक इसने कहा आई बॉट अ साइकिल फॉर माई ब्रदर, तो आई बॉट अ साइकिल, साइकिल क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर माई ब्रदर, तो माई ब्रदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्लीज बाय मी आई स्कूल बैग, प्लीज बाय मी क्या हो गया बच्चों, मी हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और स्कूल बैग क्या हो गया, स्कूल बैग इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गेव हिम अ गिफ्ट, शी गेव हिम क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ गिफ्ट क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड, तो सेकंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इसके आगे कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज वर्ब्स व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब में कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, तो उसमें क्या होगा, हम कुछ एडिशनल वर्ड्स ऐड कर देते हैं, तो वो क्या होंगे एडिशनल वर्ड, वो एडिशनल वर्ड कहलाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल है, द बेबी वॉज अलर्ट, अब द बेबी वॉज अलर्ट, अब यहाँ पर बेबी के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा है बच्चों, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका आंसर आपको व्हाट या हु करके नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये जो अनदर एक्स्ट्रा वर्ड्स लगे वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। जैसे पीपल आर इन द हॉल,
तो पीपल आर के बाद वॉट लगाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, हु लगाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये कि ये ना वॉट लगा के इसका आंसर मिल रहा ना हु, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है फ्रेज के फॉर्म। इन द हॉल, इन द पार्क, तो इन द हॉल कंप्लीट क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट हो गया नॉट ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स के थे। जूही एक्टेड वेल, तो मेन वर्ब एक्टेड है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ जो वेल लगा, वेल क्या है, कॉम्प्लीमेंट। मिसेस शर्मा इज वेरी इल, अब इज वेरी इल, यहाँ पर इज तो हो गया मेन वर्ब और वेरी इल क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेरी इल इज कॉम्प्लीमेंट इज हेयर बिकॉज इज इन द फॉर्म ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। द पुलिस कॉट द थीफ, द पुलिस कॉट, अब कॉट जो है बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो कॉट यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है थोड़ा। कॉट एक्चुअली क्या है यहाँ पर, ये ट्रांजिटिव वर्ब जैसा लगता है कि पुलिस ने पकड़ा, किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा था, थीफ। तो इसमें कुछ होगा तो whom द पुलिस कॉट, है ना, या who did caught by the पुलिस, तो द थीफ कॉट बाय द पुलिस, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें लगता है कि जैसे यहाँ पे ये द थीफ जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें मेनली ये देखना पड़ेगा कि ये प्रेडिकेट के फॉर्म में भी इसको कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को, ओके। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो इसलिए द थीफ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहीं पर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बच्चों देखिए कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो हम लोग वो सेंटेंस पढ़ते हैं विच इज़ गिवन द आंसर इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। यस फॉर्म में अगर देगा आंसर तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई लाइक टू ईट मैंगोज, है ना। और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें डू नॉट, डज नॉट का यूज़ होगा, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से वो नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा होगा, सो वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डोंट यू लाइक रीडिंग, क्वेश्चन मार्क आ गया यानी कि इंट्रोगेटिव। या फिर वॉट, वेयर, हु, विच का यूज़ होगा यहाँ पर, है ना, तो भी इंट्रोगेटिव दिखाएगा। अब आता है कमांड सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आर दोज वेयर द एक्सप्रेशंस, कमांड्स, एडवाइसेस, सजेशंस आर यूज्ड, लाइक go to your classroom, that is the command of the teacher to the student, okay, and please don't call me again, that is the request, please लगा है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो होंगे वो बच्चों क्या हो जाएंगे, ये इम्पेरेटिव है। इसमें क्या है, तो कमांड होगी या सजेशन होगा, किसी को एडवाइस दी होगी या कोई रिक्वेस्ट की गई होगी। अब सबसे लास्ट सेंटेंस आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर दो सेंटेंसेस इन विच द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू सरप्राइज, to given their feelings like this, surprise, delight, danger और grief। यहाँ पे सुख दुख को व्यक्त करने के लिए या फिर अपना आश्चर्य प्रकट करने के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए हम लोग एकदम से एक्सप्रेशंस बनाते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच, अलास दैट इज वेरी सैड एक्सीडेंट और वेरी ग्लूमी सीन। तो इस तरीके का मतलब है बच्चों कि वहाँ पे हमने अपना दुख प्रकट किया, कहीं पर खुशी प्रकट की, है ना। और तो या व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, देख करके हम सरप्राइज्ड हो गए, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो ये क्या था, ये एक्सक्लेमेशन था। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा, उससे भी पहचान लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द डे, तो ये हाउ ब्यूटीफुल इज़ द डे ये सेंटेंस है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज़ द डे पहला सेंटेंस। अब इसमें क्या है कि एकदम आश्चर्यचकित हो गया व्यक्ति, है ना, सरप्राइज हो गया, तो ये क्या एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे लग जाएगा, ओके, ये क्या होगा एक्सक्लेमेटरी, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आपको एक्सक्लेमेशन फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो बच्चों यहीं पर आपका वीडियो अब यहाँ एंड होता है। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग, ओके, बाय।